हम बात करें, आप जाइए नहा के आइए, आप जाइए ना यहाँ मुखिया जी लोग को हम लेकिन फिर जा लो उधर। साइन जा, ए साहिल, ओ साइन जा, जाइए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात है कि स्टेज पर हमारे गांव की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौलाना मुमताज़ साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। अब इंशाअल्लाह मेहमान मुअज़्ज़म की बात होगी। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि संजीदगी के साथ जो है प्रोग्राम को मुलाहज़ा फरमाएं और वॉलंटियर हज़रात आप जिस तरह से कह रहे हैं उनको माने और प्रोग्राम को सही अंदाज में चलाने में जो है आप हमारा पूरा साथ दें। तो अब बगैर किसी तमहीद के मैं हज़रत मौलाना मुमताज़ अहमद साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली से इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने नासिहाना कलिमात से हमें सरफराज फरमाएं। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آج کا یہ پروگرام نوجوانان بھنڈیلا جس جوش خلوص اور حوصلہ کے ساتھ قائم کیا ہے. واحد اس کا مطلب تعلیم کی ترویج اور تبلیغ کے لیے کوشش کرنا ہے. مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جو کچھ بھی کہیں تعلیم کے موضوع پر بتائیں، تو میں نے سوچا کیوں نہیں سب سے پہلے جو مدرسہ قائم ہوا اور جو سب سے پہلے معلم رہے اور سب سے پہلے متعلم رہے انہی کا تذکرہ کرنا. یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ ہمیشہ پڑھتے ہوں گے. یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں. اس میں حق تعالیٰ شانہ خود معلم ہیں اور حق تعالیٰ نے درس دیا ایسے طالب علموں کو جس کے وجود سے ساری دنیا کے نسل موجود ہے. حق تعالیٰ شانہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں جو روئے زمین کے اوپر میرے قانون کا نفاذ کرے. اس سرزمین کے اوپر جو بھی رہے میرے قوانین کے اوپر وہ عمل کرے، میرے اوامر اور نواہی کے اوپر اپنی زندگی گزارے. ایسا مخلوق پیدا کر رہا ہوں. اور اس مخلوق کی خاصیت یہ ہے کہ تم تو ملائکہ ہو، تمہیں تو نور سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ ایسی مخلوق ہے جو آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ چاروں چیزوں کے اجزاء ترکیبیہ سے وہ مرکب ہو گئے. یعنی وہ مخلوق آگ، مٹی، پانی، ہوا سے مل کر تیار ہو گئی. ظاہر بات ہے جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی ایسی مخلوق کی خاصیتیں اور صفتیں بھی مختلف ہوں گی. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ڈاٹا ہے،
کوئی سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی متحمل مزاج ہے، کوئی پردبار ہے، مختلف انواع مختلف صفات کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے نہیں پیدا کیا، جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی ہی میں چلے جائیں گے، صرف مٹی سے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس مٹی میں آگ بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں سے مل کر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ فرشتے پریشان ہو گئے، اے رب العالمین ہمارے اندر کیا کمزوری آ گئی، ہم نے آپ کے شان میں کیا گستاخی کی؟ ہم تو ہر وقت آپ کی تقریب پڑھتے ہیں، آپ کا حمد بیان کرتے ہیں، آپ کی کبریائی کرتے ہیں، پھر ہمیں چھوڑ کر دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا بات؟ تو فرشتوں نے کہا ہے رب العالمین جب ہم آپ کی تحمید، تکبیر، تسبیح ہر وقت بیان کرتے ہی ہیں، آپ کے ہر حکم پر آمنا اور صدقنا سر جھکائے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جھڑک دیا، چپ خاموش رہو۔ فرشتوں کو ڈانٹ دیا، ادا خاموش رہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ارے تم لوگ کو تو جتنا بتا دیا گیا ہے وہ نہیں جانتے ہو۔ ملائکہ کو جو فرشتہ روح قبض کرنے کے اوپر معمول ہے، چوٹ لگ جائے، جن فرشتوں کو روح قبض کرنے کے اوپر لگا دیا ہے وہ روح قبض کرنے کا علم جانتا، اس کو پھیلاؤ۔ میرے قانون کے مطابق سارا انسان اپنی زندگی گزارے، میں اس قانون کے نفاذ کے لیے ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جو آگ، مٹی، ہوا، پانی سے مل کر اس کی ترکیب ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد حق تعالیٰ شاہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ حق تعالیٰ شاہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی اور ان تمام چیزوں کے نام اور صفات اور خصوصیات کو بتا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کی خصوصیات بتایا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر حق تعالیٰ شاہ نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے، ان کی خصوصیات بتائے اور ان کی تمام ان چیزوں کو بتایا جو سوال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شاہ امتحان لیتے ہیں۔ اسکول میں جب تعلیم ہوتی ہے تو 6 ماہی ایگزام ہوتا ہے، سالانہ ایگزام ہوتا ہے، کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ شاہ نے کمپٹیشن کا ایگزام لیا، کس کے درمیان؟ آدم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں اور فرشتوں کے درمیان، جو پہلی مخلوق تھی جو ہر وقت اللہ کی حمد اور تسبیح و تقدیس میں لگے رہتی ہے۔ کیا امتحان مولانا؟ الا ما علمتنا، اے رب العالمین آپ کی ذات کو بہت بات ہے، مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، مجھے تو اسی چیز کا علم ہے جو آپ جتنا بتایا ہے۔ حق تعالیٰ شاہ نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا انبئہم باسماء ہؤلاء، قال انبئہم باسماء، اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ آدم علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہے، پر ساری چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات اور ان کی صفات بتا دیا۔ امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، اس کو آپ انعام دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ شاہ بھی آدم علیہ السلام کو بولنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں خوش ہو گیا، تمہیں میں نے اپنا خلیفہ بنایا، اب تم کو یہاں رہنے کی جگہ نہیں، جاؤ جنت کو تمہیں تمہاری بطور انعام کیا تھا۔ جیسا آپ لوگ اور اللہ تعالیٰ ایسے علوم سے خوش ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے فرمایا، آپ نے علم دے کر آزمائش کی اور آزمائش کے بعد آپ نے انعام عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے علمک ما علمک، علمک ما علمک، کہ آپ وہ نہیں جانتے تھے جو ہم نے علم دیا، میرے علم دینے کے بعد آپ کو علم ہوا۔ اور فرمایا نبی کا علم ہے سارے لوگوں سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ فرمایا العلماء
الانبیاء ورث الانبیاء العلماء ورث الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے. الانبیاء لا یورثوا دینارا و درہما ورثوا العلم، کہ انبیاء جو ہے وہ دینار اور درہم کے وارث نہیں ہوتے، وہ علم کے وارث ہوتے ہیں. کوئی نبی دنیا سے گزر گیا تو یہ نہیں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ان کا گھر سونے سے بنا ہوا تھا، چاندی سے بنا ہوا تھا، جواہرات سے بنا ہوا تھا. ہاں ان کے پاس علم کا خزانہ تھا. اس لیے علم کو بہت ترجیح دی گئی ہے، بہت فوقیت دی گئی ہے. بعض انبیاء کا علم، بعض انبیاء کا عمل، اس کی عبادت بعض امتی سے بھی کم ہے. یعنی بعض امتیوں کا تقوی اور عبادت بعض نبی سے بڑھ کر ہے. لیکن علم کرائی کریں تاکہ چھوٹا سا پودا اتنا ثمر آور ہو جائے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آ کر یہاں علمی تشریح کو بجانے لگا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شاہ علم کے اتنے ہی گرویدہ تھے اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی پسند علم کرتے تھے کہ سب سے پہلے وہ خود معلم بنے اور آدم علیہ السلام کو متعلم بنایا. اس کا مطلب یہ کہ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے جو دنیا میں کام آئے اور آخرت بھی کام آئے. آج کے زمانے میں جو شخص علم سے دور ہے سب کو اگر محکوم علیہ کا حالات سے واقفیت تمہیں نہیں ہوگی تو کیا تم حکومت کرو؟ اس لیے حاکم کے لیے ضروری ہے کہ محکوم علیہ کا حل حصے پہ جائے، ان کے حالات کو معلوم کرے. آپ چھوٹی سی مثال دیں، آپ کے پنچایت کا ذمہ دار آدمی ہے تو اگر آپ کے گاؤں میں آتا ہے جہاں جہاں اس کا ایریا ہے، گھوم گھوم کر لوگوں کا حالات معلوم کرتا ہے. کسی کو راشن کارڈ کی ضرورت ہے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، کسی کو اور کوئی ضرورت ہے، تو سارے لوگوں کی ضروریات اس کے نگاہ کے سامنے آ جائے گی اور اس کو تکمیل کرنے میں وہ کوشش کرے گا. لیکن اگر وہ کسی ایک جگہ بیٹھ جائے اور دو چار اس کے حوالین اس کو دینے میں لے لے اور اچھا برا وہی وہ شروع کر دے، اور وہ حوالین کا حال ہوتا ہے کہ گاؤں میں کسی سے اس کو محبت ہے، کسی سے بغض ہے. جس سے بغض ہے اس کا نام کٹوا دے، جس سے محبت ہے اس کا نام کٹوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 90 برس کے بعد جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور آخر میں میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں توڑنا ہے ابھی ہر پنجرا، ابھی میری اڑان باقی ہے، منزلیں زمیں بھر نہیں، آسمان ابھی باقی ہے. لہروں کا تھمنا نہیں سمندر کی بے بسی، لہروں کا تھمنا نہیں سمندر کی بے بسی، باہر خاموش ہی سہی بھیتر کئی طوفان باقی ہے. آدر، ابھینندن، آبھار، آداب، السلام علیکم، hello and a very good morning to everyone. A very welcome to this absolutely wonderful, beautiful and a precious day and brings together so many special people like you. I am Kamruddin Khan. Today Allah gave me opportunity to say some things. I would like to speak on the topic of education. बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा. बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा. चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी न पूरी होती शिक्षा. शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता अफसर शिक्षक. शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता अफसर शिक्षक, वैज्ञानिक मंत्री व्यापारी और साधारण रक्षक. कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान. शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान. क्या लाभ? मनुष्य का जीवन भाव शुद्ध हो जाता है अगर उसके मस्तिष्क में शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है. शिक्षा वह मित्र है जो किसी भी परिस्थिति में इंसान का
साथ नहीं छोड़ता है। मनुष्य अगर शिक्षा को अपना परम मित्र बना लेता है तो उसका जीवन आनंदमय एवं कल्पनाओं से भरा होता है। अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में जो विश्वास जगा दे, जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज उसे मुमकिन बना दे, वो है शिक्षा। नियम कानून के वो जो कोई अशुद्ध सभ्यता का पाठ पढ़ा दे, अज्ञानों के मन में ज्ञान का दीप जला दे, हर दर्द की दवा जो बता दे, वो है शिक्षा। वस्तुओं की सही उपयोगिता जो समझाए, दुर्गम मार्ग को सरल जो बनाए, चकाचौंध और वास्तविकता में अंतर जो दिखलाए, वो है शिक्षा। जो होगा अशिक्षित समाज हमारा, जो होगा अशिक्षित समाज हमारा, मुश्किल हो जाएगा सबका गुजारा। इंसानियत और पशुता के बीच जो अंतर बतलाए, वो है शिक्षा। शांति, सुकून और खुशियों का जंतर है शिक्षा। दोस्तों, शास्त्रों में आता है विद्या ददाति विनय, विनयाद याति पात्रतम, पात्रवत धर्मो प्रोति, धनाति धर्मे तथा सुखम। अर्थात विधा से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से हम धर्म की रक्षा करते हैं, और धर्म से हमें सुकून मिलता है। दोस्तों, कुरान की पहली आह्वान के साथ हुई है, वो है शिक्षा। शिक्षा की अहमियत को दर्शाते हुए कुरान कहता है, अल्लज़ीना यलमूना वल्लज़ीना ला यलमून। क्या वे लोग जो जानते हैं और क्या वे लोग जो नहीं जानते हैं बराबर हो सकते हैं? कुरान दूसरी तरफ कहता है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कहो मेरे रब मुझे ज्ञान की अभिवृद्धि से नवाजे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिक्षा हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र के जाने तक शिक्षा हासिल करते रहो। मैं भड़विका के सारे लोगों को सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो स्कूल इस गांव वाले के सारे लोगों की तरफ से जो चलाया जा रहा है, उसका फायदा इस गांव के अलावा और जितने भी अगल बगल गांव हैं सभी को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में यहीं से ही वो फूल खिलेंगे जो गांव के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन करेगा, इंशाअल्लाह। मैं अब अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा कि जहां भी जली शिक्षा की चिंगारी, जहां भी जली शिक्षा की चिंगारी, नकारात्मक वहां से हारी। जो समाज शिक्षित हो हमारा, वहां हर लोगों का हो अच्छा से गुजारा। थैंक यू। हासिल करने का मिला है। अब और यह हमारे लिए बड़ी सआदत और खुशकिस्मती की बात है कि इलाके के मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्सियत हज़रत मौलाना शमशेर अहमद कासमी साहब मुतज़िल्लुल आली मोहतमिम मदरसा अरबिया मरकोई स्टेज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। हम उनका अपनी तरफ से, स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से और गांव की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हजरत का खैर मक़दम करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं
कि अपनी तबीयत की नासाजगी के बावजूद वो हमारी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत आजिला कामिला अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर कादिर कायम रखे। और इसी के साथ साथ हमारे हरदिल अजीज जनाब विनोद कुमार साहब फॉर्मर मुखिया भी जो है तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका भी जो है तहरीर से इस्तकबाल है। उनसे दरख्वास्त है कि वो इससे तशरीफ़ लाए। अब इसके बाद स्कूल के रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल टीचर और अपने दोस्त जनाब राकेश कुमार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपनी बात हम हजरात के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब और सलाम पेश करता हूँ। संचालित कर रहे आदरणीय सभापति महोदय, मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, इकरा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय, सभी कमेटी के सदस्यगण, अभिभावकगण, दूर दराज से आए हुए सभी मनोभाव, भड़विघा से आए हुए सभी ग्रामवासियों, आप सभी को वार्षिक समारोह के अवसर पर मुझे अपने अनुभवों का व्यक्त करने का जो अवसर मिला है, ये मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान की बात है। महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता और महिला साक्षरता की कमी होना आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभार प्रकट करता हूँ स्कूल प्रबंध समिति का, जिन्होंने शिक्षा का लक्ष्य जगाने का काम किया है, जिससे एक गरीब से गरीब व्यक्ति जो आखिरी पायदान पर है, उसका भी बच्चा यहाँ तकनीकी शिक्षा सरलता से मिल सके। मेरे पास जो मेरे स्कूल का कोर कमेटी है, उनका जोश इतना हाई है, मैं उनको सलाम करता हूँ। अगर उनका विश्लेषण अगर मैं करूँ तो शायद बहुत समय लगेगा, लेकिन एक बार मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ उन सदस्य के बारे में। एक बार स्कूल में बहुत बारिश हो रही थी, बच्चे का बैग और हम लोग भी भीग रहे थे। उस समय हमारे कमेटी का एक सदस्य को पता चला कि बारिश और कारण बच्चे भीग रहे हैं। वो उसी समय भीगते भीगते आए और वो पॉलीथीन लेके बांधने लगे और वो पूरा भीग चुके थे, लेकिन बोले सर आप पढ़ाई को जारी रखें, हम लोग सारा इसमें कल होके कर देंगे। और वो आनंद कानन में मैं बताना चाहता हूँ, कल वहाँ करकट पड़ गया। तो यहाँ जिस तरह से सारी कमेटी संगठन काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जल्द से जल्द हमारे भटविघा और अगल बगल के जितने सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनको तरक्की और एजुकेशन से कोई रोक नहीं सकता। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला को किस काम की जवानी। आपको जोश हाई रखना होगा। यहाँ की संगठन
यहाँ के अध्यक्ष और सचिव, उनका जोश हाई लेवल पर है, मैं जानता हूँ। और यह स्कूल का स्ट्रक्चर, फाउंडेशन रखने के लिए काम जारी है। इसलिए अपने बच्चों को इकरा स्कूल भेजने का काम जो गार्जियन कर रहे हैं और भविष्य को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों पर विश्वास किए हैं, मैं स्वागत करता हूं सभी पेरेंट्स का, जिन्होंने लड़का लड़की भेदभाव ना करते हुए सभी बच्चों को स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं। शिक्षा जीवन रूपी अंगूठी का नगीना है। शिक्षा जीवन रूपी अंगूठी का नगीना है, जिसे प्यारे बच्चों, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही व्यक्ति का विकास होता है। महोदय, विद्यालय के सभी शिक्षक लगातार प्रयासरत हैं कि एक जिम्मेवार नागरिक का निर्माण कैसे हो। इसके लिए अनुशासन, समयबद्धता और अंतःकरण का ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए दो लाइन क्या है कि मेरे मिशन शिक्षा का है नारा, मेरे मिशन शिक्षा का है नारा, आपस में हो भाईचारा ना टकरार करो, हर बंदे में भगवान सभी से प्यार करो, हर बंदे में भगवान सभी से प्यार करो। APJ अब्दुल कलाम एक बार स्कूल में छोटा सा उम्र में पढ़ने जा रहे थे और कोई पंडित का बेटा के साथ वो बैठ गए, छोटा बच्चा थे। टीचर आए और उन्होंने कहा, तुम किसके साथ बैठ गए हो? तुम आगे वाला पंक्ति में कैसे बैठ गया? चलो पीछे बैठो। उसको पिटाई भी कर दी टीचर ने। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, वो कहा करते थे, देश का अच्छा दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, सत्य रक्षते धर्मो विद्या उग्रं रक्षते निर्जा रक्षते रूपम कुलम विद्येन रक्षते। यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। जितना अभ्यास करिएगा तो विद्या की रक्षा होगी और सत्य बोलिए धर्म की रक्षा होगी। अब नक्शा अब बनने लगा है, अरे नक्शा अब बनने लगा है, बच्चे सब पढ़ने लगे हैं। नक्शा अब बनने लगा है, बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। बच्चे जब पढ़ जाएंगे सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, अरे सोच नजारा क्या होगा, सोच नजारा क्या होगा। बच्चे अब पढ़ने लगे हैं, स्ट्रक्चर बनने लगे हैं। तो यहाँ का अध्यक्ष साहिल भाई, आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि ड्यूटी में दिल्ली में कार्यरत रहते हैं और 12 से 14 घंटा इनका ड्यूटी रहता है। कुछ गार्जियन का इनका कॉल जाते रहता है। तो मैं विभाग से ये आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी मसला हो, जो भी बच्चे की समस्या हो, आप लोग प्रधानाध्यापक को सूचित करते रहिए। और क्योंकि सॉल्यूशन यहीं से होगा और बाकी जो काम का जो बाकी बातचीत है वो चलते रहती है। इसलिए हम लोग के पास बराबर वो डिसिप्लिन
टाइम टेबल पर बात होती रहती है कि आप सब टीचर डिसिप्लिन में रखें, खुद भी रहें और बच्चों को भी रखें, क्योंकि एजुकेशन का अगर पहला जड़ है तो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन, मूवमेंट और माहौल को अच्छा रखना होगा। माहौल बनाइए। और इसका आज सावन का दिन है, उधर घंटी बज रहा है, इधर स्कूल का घंटी बज रहा है, तो दोनों का आगाज है। मौसम भी अच्छा ही है। बरसात के मौसम में प्राकृतिक के साथ भी आपका प्रोग्राम सफल हो रहा है। इसके साथ हमारे पंचायत के समाज सेवी व्यक्ति आदरणीय विनोद कुमार जी मंच पे बैठे हुए हैं। हमारे गांव के मुकेश जी हैं, राजेश जी हैं, सब लोग मंच पर उपस्थित हैं। और मेरे पास समय का भी कमी है हम लोग के पास, इसलिए इसके साथ हम लोग अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी और प्यारी बात कही तालीम के उन्वान से, और स्कूल के ताल्लुक से भी उन्होंने बात रखी है। और मैं अपने कलीग और दिमाग से फोटो नहीं खींचता, जनाब ताबिश मेहदी मोहम्मद ताबिश साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। ये हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगे, माधोपुर से ताल्लुक़ है, और जनाब वली रहमानी साहब के खास रखी और खुद एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाजी कामों में लगे रहते हैं। अब इसके बाद हमारे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत मौलाना शमशेर अहमद कासमी साहब मुद्दज़िलुल आली से इंतहाई अदब की दरख्वास्त है कि वो हजरत हम लोगों को अपने नासिहाना कलिमात से नवाजें। साउंड बढ़ाइए ना जी, साउंड को एकदम चापे हुए। تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ा करम, बड़ा फज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक अहम निस्बत पर फरमाया, कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, बीना और नाबीना बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से तारीकी और रोशनी बराबर नहीं हो सकती। इसी तरीके से इल्म वाले और अहल इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। इसकी फजीलत और अहमियत पर हम लोग मुस्तकिल गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर हुस्न नीयत ना हो, इखलास ना हो, वो चीज़ दाई और बर्बाद है। इसी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार जो है नीयतों पर है। हम किस नीयत से स्कूल कायम कर रहे हैं, हम किस नीयत से पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें नीयतों को सही करना चाहिए। क्या हमारे पढ़ने का मकसद यही होना चाहिए कि हमको अच्छी मुलाज़मत मिल जाए? ये बहुत घटिया नीयत है, ये बहुत घटिया नीयत है। हम स्कूल इसलिए कायम करें कि हमारी शोहरत हो जाए, ये घटिया नीयत है। नीयत के अंदर हमेशा इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जब हम ये नियत करेंगे तो हर काम के करते वक्त इस कदर ध्यान जरूर होगा कि
कि हमारे किस तर्ज अमल से अल्लाह खुश होते हैं और अल्लाह नाराज होते हैं। तो हम सबों को सबसे पहले नीयत को सही करना चाहिए कि हम रिज़ाए इलाही के लिए इंशाअल्लाह काम करेंगे, और काम करने में हमें आगे तक बढ़ना है और हर कदम पर हमें ये गौर करना है किस कदम से हमारा अल्लाह खुश है और किस कदम से हमारा अल्लाह क्या है, नाराज है। अल्लाह अगर राजी हो जाएंगे, अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी, आपको तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर अल्लाह नाराज हो जाए और आप सारे असबाब को अख्तियार कर लें, आप तरक्की की एक जीने को भी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अल्लाह को राजी करने की फिक्र करनी चाहिए और नियतों को सही करना चाहिए। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों की नियत में एक चीज मुश्तरक होना चाहिए कि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत हो और अल्लाह की रज़ा। इस नियत से पढ़ेंगे तो हम थकेंगे नहीं। अगर हमारे पढ़ने पढ़ाने का मकसद पैसा कमाना होगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हम मायूस हो जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबों को सही समझ आता है। मेरे दोस्तों, किसी भी काम करने के लिए अमले की ज़रूरत पड़ती है और दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम इंसान अकेला नहीं बढ़ा सकता। इसी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि अच्छे और भलाई के कामों में तुम एक दूसरे के महीन व मददगार बनो और गुनाह के कामों में एक दूसरे के महीन व मददगार न बनो, बल्कि उनका साथ छोड़ देने का हुक्म आया। दोस्तों, ये तालीमी मिशन है। चंद जवानों ने इस काम को शुरू किया। हमें खुशी है कि अहले भटरिका भरपूर ताउन कर रहे हैं, इलाके के लोग भी आए हुए हैं। दोस्तों, इस तालीमी मिशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और जिस तरह का भी ताउन हो, जानी हो, माली हो, वक्त का हो, हर एतबार से इसकी इआदत करनी चाहिए। तब जाकर ये काम फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा। और उम्मीद अल्लाह से रखना चाहिए। हम टूट उस वक्त जाते हैं, कुछ इआदत करते हैं तो हम उम्मीद यहाँ की लगा करके रखते हैं कि यहाँ हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए और हमको फला मकाम मिलना चाहिए। दोस्तों, इतने सोच के साथ हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। अल्लाह के लिए मदद करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस सुनाते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से सवाल किया कि तुम में सबसे बड़ा जानते हो कि सबसे बड़ा सखी कौन है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप भी इसको ज्यादा जानते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने हमें खिलकत दी, पैदाइश किया, सारे आज़ा बनाए, खाने को रिज़्क़ दिया, पहनने को लिबास दिया, सारा कुछ अल्लाह ने किया, अता किया। तो अल्लाह सबसे बड़ा सखी है। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद मखलूक में और इंसानियत में सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। अपने बारे में फरमाया, यकीनी बात है, इंसानियत को उन्होंने सही सिमत दिखलाया, इंसानियत की तालीम दी और आगे बढ़ने का तरीका और सलीका सिखाया और दुनिया और आखिरत संवारने का तरीका और सलीका सिखाया। और उसके बाद फरमाया, उसके बाद लोगों में सबसे सखी वो शख्स है जो इल्म सीखे और सीखने के बाद लोगों को सिखाए। सबसे बड़ा सखी दुनिया के अंदर वो शख्स है जो इल्म सीखे और इल्म को फैलाए। दोस्तों, तो जो लोग इस काम के अंदर शामिल हैं, पढ़ाने के एतबार से, उसकी मदद करने के एतबार से, सब इस पर हदीस के फजीलत में शामिल है। दोस्तों, अल्लाह हम सबों को कबूल फरमाए और खैर पर मदद करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। और इदारा जो शुरू हुआ है, अल्लाह इसको दीन दुनिया कबूल तरक्यात से नवाजे, हर सवाल, हर फितना, हर शख्स की पूरी हिफाजत फरमाए और पूरे गाँव वाले को अल्लाह की इंतहा कबूल फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अहम बातों की तरफ काम करने वालों की तवज्जो दिलाई है कि सबसे पहले काम करने वाले को अपनी नीयत को टटोलना चाहिए कि वो ये काम किसके लिए कर रहा है। ये बहुत ही अहम और बुनियादी चीज़ है कि जब नीयत ठीक होगी तो उस पर काम की जो इमारत खड़ी होगी वो भी ठीक होगी। अगर नीयत गड़बड़ है
तो उस पर खा कितनी ही बड़ी इमारत क्यों न खड़ी हो जाए, वो जो खातिर खा जो है फ़ायदा या मुफीद नहीं बन सकता है। तो हम सबको अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और महज अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानों की खिदमत के लिए जो है हमें हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब इसके बाद मैं अपने स्कूल के टीचर और दोस्त जनाब अफजल खान सर को जो दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मुख्तसर अंदाज में अपनी बात रखें। जो आलमे एजाज में है साहब एजाज, हर दौर में तरक्की करता है ज़माना। तमाम असातिज़ा किराम और हमारे स्कूल के तमाम तलबा, आप सभी को आज के दिन की बहुत मुबारकबाद। आज के इस तकरीर में मेरा जो ख़ास उन्वान है वो यह है तालीम। तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। सदर ज़ीवकार आज से 1400 साल पहले तारीख गवाह है कि तालीम तरक्की करने के पीछे जिन आज से 1400 साल पहले तारीख गवाह है कि दुनिया का जो कदीम माशरा था तो वह इंसानों का, मगर जा बजा गैर मुहस्सिब इंसान मौजूद। जहाँ ताकत तो था मगर जंगल का, जहाँ कानून तो था मगर जंगल का, जहाँ ताकत तो था मगर जंगल का, जहाँ इंसान तबाही के रास्ते पर था। फिर ऐसे में सदर ज़ीवकार आलिम और तरबियत की आगाह करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता दिखाया और इंसानों को माशरों की तालीम और तरबियत के लिए, रहन सहन तब्दील करने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हासिल को मुहज़्ज़िब और हमदिल करने का एक जगह इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो क्यों ना तुम्हें चीन जाना पड़े। इसलिए बच्चों के तमाम गार्जियन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चों के दीनी और दुनियावी तालीमों से आरास्ता करने के लिए नहीं हो। अफजल सर का कि उन्होंने अपनी बात रखी, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हौसला अता फरमाए। और अब इसके बाद अपने स्कूल के सरपरस्त जनाब हाजी मास्टर अब्दुल क़य्यूम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी बात हमारे सामने मुख्तसर अंदाज में रखें। जनाब हाजी साहब। आज हम लोग इस मजलिस में जमा है, उसमें तालीम के बारे में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। शुरू से इसी के बारे में, इसी का फायदे, इसी की ज़रूरत बयान की जा रही है। हमारे उलमाओं ने अभी कुछ बयान किया, कुछ हमारे इस स्कूल के मौलवियों ने बयान किया। आज का खास प्रोग्राम यकरा स्कूल ये 2 साल पूरा होने का, इस 2 साल में हमारे स्कूल ने क्या प्रोग्रेस किया और हमारे नौजवानों ने इसकी क्या अभियानी की है और किस तरह से इसको अभी तक फेंक रहे हैं, मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ चंद नौजवान जिन्होंने इस बात को आज 7-2 साल पहले महसूस किया कि जो हमारे गांव में तालीम हो रही है उसमें बच्चे कहाँ तक कामयाब हैं, बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसको कहाँ तक हमको ले जाना है आगे। ये सब सोच कर इन लोगों ने
ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو آج بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ ادارہ دن بدن آگے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اینگل بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھلنے پھولنے کا اور زیادہ سے زیادہ موقع دے، لیکن اس میں ابھی بہت کام باقی ہے۔ یہ ادارہ آپ کا اپنی بلڈنگ میں نہیں ہے، یہ کسی کے گھر میں یہ چل رہا ہے، اور آگے کا سوچ ان بچوں کا بہت بڑا ہے، لیکن وہ اکیلے ان لوگوں سے ہو نہیں پائے۔ جب تک ہمارا یہ پورا سماج، ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ جب تک اس میں زور نہیں لگائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا گھر ہو، چھوٹا سے چھوٹا بھی آدمی، کوئی نہ کوئی چرند ہو، پرند ہو، آدمی ہو، سب اپنا گھونسلہ چاہتا ہے۔ اس بار کا یہ پروگرام آپ کے سامنے اسی لیے رکھا گیا ہے۔ آپ سامنے بینر دیکھ رہے ہیں، بینر پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بلڈنگ کا آج سنگ بنیاد رکھا جانا ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ باہر کے لوگ نہیں آئے، پہلے ہم اس میں زور لگائیں گے، اب اس میں تعاون کریں گے۔ اس تعاون سے یہ ہماری بلڈنگ تعمیر ہوگی، یہ ہماری ایسی بلڈنگ ہوگی جو آنے والی نسل کو، جو شروع سے بابا آدم کے زمانے سے تعلیم میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، سب سے پہلی تعلیم اقرا بسم ربک الذی جو شروع کیا گیا ہے، اس کو پائے تکمیل تک یہ پہنچائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور تعلیم کے بارے میں تو ہمارے ساتھ علماؤں نے زیادہ سے زیادہ بیان کیا ہے کہ تعلیم کی کیا فائدیت ہے، تعلیم سے کیا ہوتا ہے، تعلیم نہ رہنے سے کیا نقصانات ہیں، یہ تو ساری باتیں بتا چکے ہیں۔ اس لیے میں یہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ کیا ہے، ابھی منزل ہماری بہت دور ہے اور اس منزل تک پہنچنے میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ جو کارواں کی شکل جو بھی بنی ہے، امید کرتے ہیں کہ اس میں اور اضافہ ہوگا، اور جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہمارے عزائم ہیں، اس کی تکمیل میں، اس کو مکمل کرنے میں جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ابھی انشاءاللہ آج اس پروگرام میں ہی، پروگرام کے بعد اسکول کی عمارت کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے تھوڑی درخواست ہے کہ جو اس تعاون میں، یعنی اس عمارت کی تعمیر میں جو ہے آپ حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے ایک حدیث کی طرف ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، اس میں سب سے نچلے درجے میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سخی وہ بھی ہے جو علم پھیلاتا ہے، علم بانٹتا ہے۔ تو اسی طرح سے درجہ بدرجہ جو اس علم کے پھیلانے میں، بانٹنے میں جو حضرات مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ علم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب جو ہے ہمیں پہنچتا رہتا ہے، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے اگر اس نے وہ 3 کام کیے ہیں۔ تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ او علم ينتفع به، کہ اس نے علم کا ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہو، یا اپنی اولاد کو علم سکھا دیا ہو، یا علم پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہو، تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی جو ہے آپ کو جو ہے پہنچتا رہے گا۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ جب تک یہ علم کا گلشن
फैलता फूलता रहेगा, जब तक इसकी शाखें अपने बरगोबार निकालती रहेंगी, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी जो है आपके झोली में जो है गिरता रहेगा। अब इसके बाद जो है हमारी हरदिल अजीज शख्सियत और समाजी कार्यकर्ता, जिन्हें हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे दुख दर्द या खुशी गम, खुशी मुसर्रत का मौका हो, वो हर वक्त हमारे साथ खड़े नज़र आते हैं। अब उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ और इनसे मेरी मुराद यकीनन आप समझ गए होंगे कि जनाब विनोद कुमार साहब हैं, तो अब इनसे मैं अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात जो है हम हज़रात के सामने रखें। जनाब विनोद कुमार।